Hey guys, welcome back to my YouTube channel Future Banker IFE. So, in this video, we're gonna cover the other points of static banking awareness. Okay, the last I remember, I covered the last point was payment banks. Okay, so without wasting any further more time, let's come to the video. So the next point is Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). 8 April 2015. So it came in 8 April 2015, providing loans up to 10 lakh to the non-corporate, non-farm small micro enterprises given by commercial banks, RRB, small finance banks, cooperative banks, MFIs and NBFCs. ओके सो ये जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये प्रधानमंत्री जी लाए थे, प्रधानमंत्री मोदी जी लाए थे 8 अप्रैल 2015 को। इसमें 10 लाख तक का लोन्स जो प्रोवाइड किया जाता है नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर्स को प्रोवाइड किया जाता है। इसमें नॉन फार्म स्मॉल एंटरप्राइजेज जो भी होती हैं, जो कि कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज और स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज और एमएफआईएस, ओके, ये सब प्रोवाइड कराते हैं। ओके सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कीम्स इन दिस Yojana. Okay, the first one is Shishu. So it covering loans up to rupees 50,000. Okay, so it covers loans up to 50,000. And the second one is Kishore, and it covers loans of rupees 50,000 and up to 5 lakh rupees. Okay, and the third one is Tarun, and it covers loans of rupees 5 lakh and up to 10 lakhs. ओके, तो जो शिशु है उसमें 50,000 तक लोन्स प्रोवाइड किया जाता है। जो किशोर स्कीम है उसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक प्रोवाइड किया जाता है। एंड तरुण स्कीम है उसमें 5 लाख से 10 लाख तक प्रोवाइड किया जाता है। ओके, सो या एंड द फुल फॉर्म ऑफ मुद्रा is Micro Units Development and Refinance Agency Limited. Okay, Micro Units Development and Refinance Agency Limited, and the full form of PLC is Public Limited Company. Okay, so please remember all the full forms, they are very important. Okay, they asked in banking examinations. Okay, so the next point is non-performing assets, NPA, and the most important points. Okay, NPAs इंटरव्यूज़ में भी पूछे जाते हैं और एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। Okay, so what is NPA? Non-payable loans are called non-performing assets. Okay, so जब भी हम बैंक से लोन लेते हैं और वो लोन्स हम टाइम रहते हुए बैंक्स को नहीं देते हैं तो जो हमारा अकाउंट है, सॉरी, जो वो अकाउंट है वो NPA अकाउंट हो जाता है। ओके, सो जब बैंक को पैसा नहीं मिलता है तो वो NPA हो जाते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, सो इसमें 3 कैटेगरी है। SMA0 जो 30 डेज़ की है, सेकंड है SMA1 60 डेज़, एंड SMA2 90 डेज़। मतलब SMA मतलब 30 डेज़ से हो ज़्यादा हो गया कि हमने अपना लोन पे नहीं किया, EMI पे नहीं की। एंड सेकंड SMA1 मतलब 60 डेज़ हो गए हैं, और SMA2 मतलब 90 डेज़ हो गए हैं। 90 डेज़ के बाद हम उसके वो NPA की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, so there are some points. First point is standard assets, which is from 0 to 89 days. Second is NPA 90 days. Third is substandard less than 12 months. Fourth is doubtful more than 12 months, and fifth is loss. Okay, so सबसे पहले जब हम लोन पे नहीं करते हैं तो वो सबसे पहले स्टैंडर्ड एसेट्स की कैटेगरी में आता है, जो 0 से 89 डेज़ में होता है। उसके बाद बैंक उसको NPA की कैटेगरी में डाल देता है, जो 90 डेज़ पूरे होने पर हो जाता है। ओके, उसका थर्ड कैटेगरी में सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में डालता है, जो कि 12 मंथ से कम के अंडर में आती है। एंड फोर्थ फिर वो डाउटफुल पे चला जाता है, जो मोर देन 12 मंथ्स होता है। उसके बाद फिर लॉस हो जाता है, मतलब वो लॉस प्रूव कर दिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज द सरफरासी एक्ट. Okay, so securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest. So this is the Sarfarasi Act, and it came in the year 2002 by the RBI. Okay, so it is this act is used for रिकवरी ऑफ NPS. ओके, सो बैंक्स को NPS की जो रिकवरी करने के लिए ये एक्ट यूज़ किया जाता है। ओके, सो इट हेल्प्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू एंश्योर एसेट quality in multiple ways. Setting up of asset reconstruction, RCs, and asset securitization companies, SCs, to deal with NPS accumulated with the banks. ओके, सो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो एसेट है जो वापस मतलब उसकी रिकवरी के लिए उनको मल्टीपल वेज में हेल्प करता है। ओके, सो द नेक्स्ट इज़ डिपॉजिट
Insurance and Credit Guarantee Corporation, DICGC. Okay, so it was given by RBI. So okay, what is DICGC? So it provides insurance to all the banks registered under the guidelines of the RBI Act. It is mandatory for all the banks. ओके मैक्सिमम 5 लाख फॉर डिपॉजिट. सो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है. ओके बैंक्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है जो कि आरबीआई एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं. और ये हर बैंक्स के लिए मैंडेटरी, मतलब सबको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है. ओके सो ये बैंक को इंश्योरेंस देता है जब बैंक्स अकाउंट्स एनपी हो जाते हैं या लॉस उसके बाद लॉस में चले जाते हैं. अगर रिकवरी नहीं होती है तो ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट इज ओके सो वी गोना स्टडी अबाउट accounts in NRI accounts, NRE accounts and FCNR accounts. Okay, so these are accounts for NRIs. Okay, so for accounts of NRI, PIO, NRE. NRE is means non-resident external account. So this account is open in Indian rupees. Okay, the second one is NRO, non-resident ordinary account. So the money has to be used only for local payments in Indian rupees. Okay, so it is also open in Indian rupees by the NRIs, but the money can be used only in India. Okay, you cannot use money in another countries. Okay, so the next is foreign currency non-resident FCNR accounts. Okay, the money in foreign currency, these are fixed deposit accounts. So the money in these accounts are of foreign currency. Okay, so these accounts are also opened by NRIs and they are in foreign currency, so they are fixed deposit accounts. Okay, so because we can't use that currency, that's why. Okay, so the next point is codes in banking sector. Okay, so जब हम एज वी ऑल नो जो हम चेक लेते हैं बैंक्स की, जो हमारी पासबुक होती है, जब भी हम चेक के वहाँ जब चेक लेते हैं हम, जो भी चेक होता है उसमें कोड लिखा होता है जो होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन. ओके, सो ये कोड क्या होता है? सो ये MICR कोड इज़ अ 9-digit कोड दैट आइडेंटिफाइज अ बैंक एंड अ ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियर सिस्टम ECS. द फर्स्ट डिजिट ऑफ द कोड इज सिटी कोड, द मिडिल वंस इज बैंक कोड एंड द लास्ट 3 digit इज़ ब्रांच कोड. ओके, सो वो जो MICR कोड जो होता है वो 9 digit का कोड होता है. ओके, इसमें वो आइडेंटिफाई करता है कि किस बैंक का है एंड किस ब्रांच का है. ओके, सो ये हमें हेल्प करता है. तो जो फर्स्ट 3 digits होती हैं वो सिटी कोड्स रिप्रेजेंट करती हैं, तो मिडिल वंस होती हैं वो बैंक कोड रिप्रेजेंट करती है, एंड ये जो लास्ट 3 होती है वो ब्रांच कोड रिप्रेजेंट करती हैं. सो लास्ट डिजिट ब्रांच को रिप्रेजेंट करती है, मिडिल वंस बैंक को, एंड और जो फर्स्ट डिजिट है वो सिटी को रिप्रेजेंट करती है. ओके, सो नेक्स्ट इज IFSC कोड. ओके, IFSC कोड हर ब्रांच का होता है. ओके, हर ब्रांच का सेम IFSC कोड होता है. सो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, तो ये 11 digit का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है जो कि एक बैंक ब्रांच को आइडेंटिफाई करता है. ओके, सो डेट आइडेंटिफाइज अ बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन एनी RBI रेगुलेटेड बैंक्स regulated funds transfer system. First 4 digits represent the banks and the last digit represent the branch. The fifth digit is 0. ओके, सो इसमें जो फर्स्ट 4 digits होती हैं वो बैंक को रिप्रेजेंट करती हैं और जो लास्ट 6 कैरेक्टर्स होते हैं वो ब्रांच को रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सब ने देखा होगा IFSC कोड. ओके, और ये 11 digit का होता है, एंड जो उसकी 5th digit होती है वो 0 होती है. सो okay, so last we are gonna study for today is SWIFT code. So SWIFT code, the full form of SWIFT code is the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. So what is SWIFT? It assigns each financial organization a unique code. मतलब हर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को एक यूनिक कोड प्रोवाइड किया जाता है, तो वो स्विफ्ट कोड कहलाता है. डेट हैज़ ईदर कैरेक्टर्स और 11 कैरेक्टर्स. ठीक है, इसमें 11 कैरेक्टर्स होते हैं. ओके, BIC बैंक आइडेंटिफायर कोड, इसको बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कहते हैं और स्विफ्ट को ID कहते हैं, और ISO 9362 कोड भी कहते हैं. ओके, या सो इसको बैंक आइडेंटिफायर कोड भी कहते हैं, स्विफ्ट ID भी कहते हैं, ISO 9362 कोड भी कहते हैं और स्विफ्ट कोड भी कहते हैं. और ये 11 कैरेक्टर्स का होता है और ये हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कंपलसरी. ओके, so yeah guys, that's all for the today's, and we're gonna cover some other points in the next video, so stay tuned
and don't forget to subscribe my YouTube channel Future Bank Karachi. And yeah, thank you guys.